Assalamu alaikum everyone. This is Ehsan Chishti. A very warm welcome for today's ETP program, AMP's free online employability training program. I would now do a short presentation about AMP. Introducing AMP India Foundation, AIF. AMP India Foundation is a not-for-profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social services to meet the needs of underprivileged individuals. The services are provided to needy individuals irrespective of caste, creed, and religion. Employment Assistance Cell. We all are witnessing AIF's success as one of the most admirable national level NGO, striving for 3 E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AIF's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AIF had launched a special project with the name of AIF Employment Assistance Cell during its initial stages of formation. Our major EAC activities include, but are not limited to, conducting job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, candidate mobilization for skill development courses, job fairs. Job fair is one of the flagship project of AIF, and we have successfully organized 43 plus job fairs till date. Every job fair has participation of minimum 50 plus companies and 2000 plus candidates. AIF has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AIF as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AIF invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings and advertise their openings in order to attract suitable candidates. We conduct job drives every week throughout India in collaboration with other consultancies and NGOs through the help of our chapters. These local partners do ground promotions for candidate mobilization and take care of all the arrangements of the job drives. In case of multiple openings, we also organize special job drives for a corporate, wherein we invite only one corporate and help them fill their requirements. Employability training programs. AIF's Employability Training Program, or ETP, has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in a present-day modern organization. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and are committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs there on a regular basis, usually once every month. Skill training company tie-ups and candidate mobilization. AIF has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standard. Candidate mobilization. AIF has mobilized candidates for various skill development courses like AC technician, mobile repairing technician, solar engineering under Skill India mission in centers all across India. Our achievements. We have conducted 43 plus job fairs, from them 9 online job fairs,
we have done during the current pandemic. 275 plus job drives, 10 online job drives, 220 plus employability training programs, 34 online ETPs, 25,000 plus candidates placed. A new initiative, empowerjobs.com, connecting right talent with right opportunity. Empowerjobs.com was launched on 6th December 2020. It is a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. I would now like to invite our speaker for today, Professor Bushra Ansari. Professor Bushra Ansari is a motivational speaker, mentor, pre-placement grooming. She has done soft skill and training, and she's a skill development trainer, content writer. She has trained 1,000 plus students. She is a visiting faculty at IEIBS, India Europe International Business School. She was also associated with ITM Hotel Management and assistant professor with Vivek College of Commerce. I would now request Professor Bushra Ansari to please take over from here. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Hello everyone. Thank you for such a lovely introduction. So today we're going to talk about something very interesting in the name of Win the Job, Win the Interview. Of late, I have had AMP comes up with all these employability training programs. They keep doing it. And it's really great to be associated with AMP and doing these ETP programs. So today I thought कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करते हैं which is not very specific or very core to the topic or say core to the thing but which can connect with everyone. मतलब आप सभी जितने भी participants हैं आप सबको ये टॉपिक कहीं ना कहीं it will be more like you will be able to understand. आपको कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो कि शायद आंसर हो जाए आज के सेशन के बाद. बट प्रोवाइडेड उसमें आप अपने आप को कितना रिलेटिव समझते हैं, कितना अपने आप से इन चीजों को जोड़ते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग. जैसे कि आज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक विन द इंटरव्यू, विन द जॉब as the ETP program that we are having. Now to begin with, I'll start with, I generally start with a quote. Let people know you from not from the words but by your actions. What we generally do is what we हमारी आदत होती है कि हम क्या कोशिश करते हैं कि लोग हमको जिस तरह से हम जो बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि नहीं आई एम, जैसे एहसान जी ने भी कहा कि आई एम प्रोफेसर ओवर हियर, या फिर मैं ये सारी चीजें करते हैं. तो जैसे ही ये चीजें बोली जाती हैं आप अभी सुनोगे, शायद 1 मिनट के लिए सोचोगे अरे हाँ ये भी है वो भी है, प्रोफाइल एंड ऑल, और फिर शायद यहाँ से जाने के बाद आप भूल जाओगे. बट व्हेन वी लुक एट थिंग्स, जो चीजें मैं अगले 1 घंटे में शायद आपसे जो कहने वाली हूँ उसमें से शायद 0.1% भी आपको समझ में आए या आपको रिलेटिव लगे, दैट इज व्हाट पीपल शुड थिंक ऑफ. मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, क्या मेरी सारी चीजें हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप आज यहाँ से क्या लेकर जाते हो. आप आज अगर यहाँ पर ज्वाइन होते हो तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है. ना, नेवर आस्क व्हाट टू योर हेड, हाउ टू योर हैंड एंड व्हाई टू योर हार्ट. देयर इज दिस होल थिंग जो आपके अंदर आपकी काबिलियत या आपको जो अचीव करना है, आपको इंटरव्यूज देने हैं, आपको जॉब करना है, आपको करियर के बारे में सोचना है, तो ये सारी चीजें होने के लिए और करने के लिए आई बिलीव देयर इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 H, हेड, हैंड एंड हार्ट. यानी कि आपके पास दिमाग है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, आपके पास आप
mashallah say you have all your you have all the things working, so you know कि आपके पास काबिलियत है आप मेहनत करने के लिए, तो that is your hand. And then we talk about your heart, जहां पर हमारा कंसाइंस हमें बार बार याद दिलाता है ये सही है, ये गलत है, ये बेईमानी है, ये सही नहीं है, all sort of things. So उस केस में अगर अब आप, जब मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क में रहोगे कि मुझे आगे करना क्या है, आई नीड टू क्लियर द इंटरव्यू, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कैसे मैं अपने आप को तैयार करूं, कैसे मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊं तो लोग मुझे प्रेफर करना चाहिए ना कि किसी और को। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी सीवी से भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये चीज सोचे कि जब आपको कोई काम दिया जाए या आप जिस भी सिचुएशन में रहो तो अपने दिमाग से कभी ये मत पूछो कि ये क्या है, अपने हाथों से ये मत पूछो कि ये कैसे होगा, ना ही अपने दिल से ये पूछो कि ये क्यों है, मतलब मैं ये क्यों करूं। लेट्स कीप इट सिंपल। जब हमें कोई काम दिया जाए या कहीं पर मुझे अपना स्किल प्रूव करने का मौका मिल रहा है तो व्हाई इज इट लाइक कि मुझे ये पूछना पड़े। इट्स सिंपल, व्हाट डू यू हार्ट, हाउ डू यू हैंड एंड व्हाई डू यू हार्ट, नेवर आस्क दिस। बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक इंटरव्यू के लिए बैठे हो, इमेजिन करो आप अगर एक इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस के कॉरिडोर में बैठे हो, सो इन दिस केस अगर आप ये सोचोगे, आप अगर ये बोलोगे कि अरे मैं यहाँ पर हूँ, पता नहीं मेरा तो होगा नहीं, मेरा तो इंटरव्यू होने ही नहीं वाला है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, या फिर ये मेरे साइड में जो बैठा हुआ इंसान है इसका सीवी तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो इसने तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन ले रखी है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, बट ऑब्वियसली आपके दिमाग में आने लगेगा कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट, आई रियली कैन नॉट गो अहेड, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, जाने दो यार, ये इंटरव्यू तो मुझसे क्लियर नहीं होगा, ये सारी चीजें आने लगेगी। इसलिए डोंट पुट योरसेल्फ इनटू क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट योर हेड, हैंड एंड हार्ट, रिमेंबर दैट। कमिंग टू इट, who are you? If I ask you this question, okay, if we cannot take answers, if we cannot have an interaction right now, but let's think about it. मैं चाहती हूँ इवेंचुअली जब मैं ये सारी चीजें ये सब आपको बताऊं या फिर जब मैं इन चीजों के बारे में बात करूं तो आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करें। ask yourself who are you? You will get answer, I am boy, I am a girl, मैं एक लड़का हूं, मैं या तो मैं एक लड़की हूं। एट मोस्ट आपको क्या जवाब आएगा? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि आप किसी की बेटी हो, आप किसी के बेटे हो, तो आपको क्या करना है? नहीं, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, जॉब पे लगना ही है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले बोलेंगे अरे ये किसी का बेटा है, अरे आपका बेटा अभी तक जॉब पे नहीं लगा, अरे मेरे घर वालों को सुनना पड़ रहा है, मेरे माँ बाप को सुनना पड़ रहा है कि मैं अभी तक जॉब पे नहीं लगा। बेटी हो, अरे लड़की है, बाहर जाके जॉब क्या करेगी, क्या जरूरत है, घर पे बैठे ट्यूशन पढ़ाए बस हो गया, एम्ब्रॉयडरी का काम करे बस हो गया। आप किसी के हस्बैंड हो, आप किसी के वाइफ हो, वाइफ का काम है अरे घर संभालो, कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने की, अपनी स्किल्स अपने टैलेंट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 साल की हुई लड़की, चलो शादी करा देते हैं। हस्बैंड, अरे शादी कर ली ना, अब आपका काम है पूरी जिम्मेदारी उठाओ, शादी करने का शौक था ना, शादी कर ली, चलो अब करो, अब घर की जिम्मेदारियां उठाओ। So likewise, you are a brother or a sister to someone. भाई है, बड़ा भाई है, बाय डिफॉल्ट भाई ही जिम्मेदारी उठाएगा। बड़ी बहन है, वो है ना, अगर बहन की शादी हो गई तो चलो अब आपकी शादी करवा देते हैं। You might be a father to someone, a mother to someone, or your parents out there, जो कि है, तो उनको अलग से जवाब देना है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? आप किसी के दोस्त हो, आप किसी के कलीग हो, मतलब उसके साथ काम कर रहे हो, आप किसी के टीम मेंबर हो, that you are actually working with them, ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप ये हो। कोई आपको आपके नाम से नहीं जानेगा। अगर मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन करके देखूं तो मुझे लोग मिलेंगे जिनका नाम है, जिनकी एक आइडेंटिटी है, बट लोग हमको जानते कैसे? ये बेटी है, ये उसकी बेटा है, ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है। अगर यही चलता रहा तो आपके साथ होता क्या है पता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके जो ये करियर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपके एम्बिशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपके इंटरव्यू रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जहां आपको ऐसा लगता है मैं ये जॉब क्लियर करूं,
तो क्यों, why do you have this whole thing with you? why do you have this कि आपको जॉब जाओगे तो जॉब मिल ही जानी है। आज आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जा रहे हो तो नहीं, मुझे ये जॉब मिलनी ही है, बिना उसके मुझे वापस नहीं आना। इसलिए जब इंटरव्यू ठीक ना हो तो मैं एकदम उदास होके आ जाऊंगा। क्यों? why do we have to think like this? why it has to be the case? People think you are a brother or a sister, but actually में you are a professional. अब प्रोफेशनल का इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जाओगे ऑफिस में काम करोगे तो ही प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की मीनिंग है कि आप चीजों को किस तरह से हैंडल करते हो, आप आपके डिसीजंस कैसे लेते हो, आप अपने आप की काबिलियत कैसे प्रूव करते हो, हाउ डू यू पुट इट टू पीपल, लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलता है, आप कितना अच्छे से बिहेव करते हो, कितना अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, क्या काम पूरा करते हो, डेडलाइन कैसे अचीव करते हो, लोगों से काम कैसे करवा के लेते हो, लोगों से कितना अच्छे से बात करते हो, कितना झगड़ते हो। ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनलिज्म में आती हैं और आप इंडिपेंडेंट। बट हमारे साथ होता क्या है, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ हस्बैंड, हमारे सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वो सब कुछ है ना बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर। आप लोगों से मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस यंग होगी, जो कि अब शायद इंडस्ट्री में जॉब के लिए निकलने वाली है। तो वो केस में हम जो डिसीजंस लेते हैं ना कि चलो ठीक है, 2-3 महीने जॉब ढूंढे, नहीं मिला अपनी मर्जी का, तो चलो अब तो करना पड़ेगा, घर पे जॉब की जरूरत है, लोग बोलने लगे कि अरे अभी तक इसको जॉब नहीं मिला, तो चलो ठीक है, आई विल एंड अप डूइंग कॉल सेंटर का जॉब, आई विल एंड अप डूइंग एनी अदर जॉब, बैकएंड में मिल गया तो भी चलेगा, मार्केटिंग का प्रोफाइल है मेरा बट मेरे को बैकएंड में मिल गया, चल जाएगा। ये चीजें कहाँ आ रही, जब मेरा डिसीजन मेकिंग दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं खुद पे यकीन रखकर ये सोचूं कि नहीं, आई हैव टू एक्सप्लोर माई स्किल, तब मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इमोशनल हूँ, आप इमोशनल हो, हर इंसान इमोशनल होता है, क्योंकि अगर आप इमोशनल नहीं होते तो 2-3 महीने की नाकामयाबी के बाद आप झट से कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको रहता है कि नहीं, घर पे जॉब करना जरूरी है, घर की जरूरतों के लिए, आपके करियर के लिए, घर के सपोर्ट के लिए, यू फील दैट यू नीड टू गेट अ जॉब। और ये पहला गलत ब्रेक या फिर ये एलिमेंट जहां पर आपको शायद जहां ज्वाइन करना था आपने वहां नहीं किया, उस केस में आपका करियर पे एक अफेक्ट आता है। आज इस टॉपिक पे बात करने का मेरा रीजन ये है क्योंकि यंगस्टर्स जनरली, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप फोकस कर रहे हो अपने आप को इंटरव्यू रेडी करने के लिए, आप फोकस कर रहे हो अपने आप को लाइक कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, बट जब तक आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग नहीं कर लेंगे, आप अपने आप को ये नहीं देखेंगे कि आपका करियर कहाँ जा रहा है और आपको क्या करना है, आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के पहले इसी एंजाइटी में रहेंगे। एंड सडनली जॉब ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद आपको फील होगा, क्या ये सही था, मुझे ये तो करना नहीं था। फिर वो रिग्रेट फीलिंग आती है, वो सैड वाला फीलिंग आता है, आपको लगता है कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने गलती कर दी। बट फिर तब तक आप जॉब में ज्वाइन हो चुके होते हो, सैलरी आना शुरू हो जाती है, घर की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है, फिर आपको लगता है अरे अभी मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। अब इसमें महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल निकल जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आप क्या करते हो, एट द एंड ऑफ द डे फिर आप वो जॉब छोड़ते हो। ये करते करते जब साल निकल गया तो आपको रियलाइज होता है दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, ये वो नहीं है जो मुझे करना था। फिर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपको बहुत मेहनत लग रही है अपने मनपसंद जॉब को ढूंढने में। तो ये चीजें होती है, आप एक इमोशनल इंडिविजुअल हो, आप एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल हो जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, आप एक टैलेंटेड इंडिविजुअल हो। जब आपकी बात करूं, जब मैं आप सबकी बात करूं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास कोई टैलेंट नहीं। चपाती बनाना भी एक टैलेंट है, खाना बनाना भी एक टैलेंट है, घर में बच्चों को संभालना भी एक टैलेंट है, बाहर जाकर किसी से कुछ बात करना भी एक टैलेंट है।
तो छोटी बड़ी चीजें, डिसीजन लेना भी एक टैलेंट है, हर एक को नहीं आता। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लोगों से मुख्तलिफ कर रही है, लोगों से अलग कर रही है। लेकिन व्हाट वी एंड अप डूइंग इज, नहीं मेरे भाई ने मेरे को ये नहीं करने बोला है ना, ठीक है, नहीं मेरा भाई अगर मेरे को अंकल ने, ये चाचा ने ये कह दिया, मामा ने वो कह दिया, मैं तैयार ही नहीं हूं कि मैं जाकर गूगल करूं, मैं जाके करियर ऑप्शंस देखूं, मैं जाकर ये सोचूं कि ये करियर ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, क्या मेरी पर्सनालिटी है, क्या मैं हूं कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। am I possible, am I suitable to get into a nursing job? अगर मुझसे नहीं होता, मैं पेशेंट नहीं हूं, तो मैं अगर अपने अंदर सब्र नहीं रखती तो मैं जाके कैसे करूं, मैं जाके एक नर्सिंग का काम कैसे करूं, शायद मैं पेशेंट्स की प्रॉब्लम को बर्दाश्त ना कर पाऊं। तो ये मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूं और मैं किस तरीके से चीजों को आगे ले जाकर चला सकती हूँ। एंड दैट्स वेयर इट इज इम्पोर्टेंट। इवेंचुअली हाउ डू यू शो योर रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड, ये भी एक क्वेश्चन है। आई होप बाय नाउ आपको थोड़ा तो मन में क्वेश्चन आ ही गया होगा कि आप हो कौन, आप कर क्या रहे हो। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, और ये आना भी चाहिए। व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं अपने डिसीजंस किस तरीके से ले रही हूँ, घर के जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, सर्टेनली हर इंसान को करनी है, आप भी करोगे, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन क्या इसमें मेरे करियर को दाव पे लगाना जरूरी है? क्या इसमें मेरे एम्बिशन को दाव पे लगाना जरूरी है? क्या इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे जो काम करना है मैं वही काम ढूंढूं? और मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। शायद आप वहां बैठ के सोचो कि मैम आपके लिए बोलना बहुत आसान है, पर ये होता नहीं। मैं भी उसी फेज से गुजर चुकी हूँ, मैं भी शायद आपकी एज की थी, मैं भी इस सारे डिसीजंस को ले चुकी हूँ, मैं भी घर संभालती हूँ। बट देन हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई एम शोइंग माई रियल सेल्फ? आई नीड टू ऑब्टेन प्रॉपर एजुकेशन। आज मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है, आई शुड नो इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश कितनी स्ट्रांग आती है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है, मेरे अंदर नॉलेज कहाँ है, और ये नॉलेज, ये काबिलियत मुझे एजुकेशन से आएगी। तो मैं 12th पढ़ने के बाद सोचूं मुझे 20,000 की जॉब मिल गई, हो गया काम, ठीक है मिल गई, पर क्या मुझे जिंदगी भर 20,000 पे ही रहना है? 1,000 2,000 बढ़ा के मैं सिर्फ 30,000 की सैलरी तक पहुंचू 50 साल की एज तक? या फिर मैं कुछ अपने अंदर ऐसा टैलेंट लाऊं जो कि मुझे यूज हो, जो कि लोगों को पसंद आए, या फिर जो कि मुझे ज्यादा बेनिफिट दे। समझा? सो वी टॉक अबाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर एजुकेशन, यूटिलाइजिंग द एजुकेशन फॉर फैमिली ग्रोथ। आपकी जो एजुकेशन है, आप जो कर रहे हो, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, या फिर शायद आप कोई और चीज अटेंड करने की अभी कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट फॉर योर फैमिली ग्रोथ। ऑलवेज डू दैट, ऑलवेज डू दैट। अगर मैं एमबीए हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अकेले एमबीए हूं, मेरा काम हो गया, ठीक है। इट्स नेसेसरी कि मैं वो नॉलेज दूसरों में शेयर करूं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं करियर गाइडेंस हूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा करियर बन गया, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, आई एम डूइंग थिंग्स व्हिच आई लव एंड एंजॉय। बट देन हाउ एम आई एक्चुअली फोकसिंग इट? अब डेफिनेशन क्या होता है एक गुड जॉब का, आपका करियर, आपका एम्बिशन, आपका इंटरेस्ट। एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरे पास एचआर पढ़ने वाले बच्चे भी है, ह्यूमन रिसोर्स। अब ये बच्चे बड़ी मुश्किल से एचआर पढ़ तो लेते हैं, बट देन दे आर लाइक मैम मार्केट में गए, जॉब ही नहीं है, मैम एचआर के लिए तो कोई ओपनिंग ही नहीं आ रही है, मैम ओपनिंग ही नहीं आ रही है। थक हार के जो बच्चे पेशेंस हार जाते हैं, आई हैव सच स्टोरीज, जो जिनको जिनको नहीं रह जाता कि अरे नहीं नहीं मैम बस हो गया, अब तो जॉब पे लगना है, they have ended up in call centers and back end office job. But then I had students जिनके अंदर ये परसिस्टेंस था कि नहीं, अगर एचआर किया है तो एचआर में ही करियर बनाएंगे। I have 2 different students, एक वोडाफोन में जॉब कर रही है एचआर डिपार्टमेंट में, दूसरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे, just 3 years into HR. So ये कब डिसाइड होता है? जब आप अपना पेशेंस रखो और अपने थॉट्स में क्लियर हो कि आपको करना क्या है। You need to make your career plan. Nobody is going to do that for you. I have took this topic very seriously today.
We are talking about interview ready होना है, but then what career are we talking about? Where are we starting? हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं? जो जॉब इंटरव्यू आया वहां चले गए, चलो ठीक है, या फिर अपनी मर्जी का इंटरव्यू नहीं आया तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा। दोनों भी सिचुएशंस गलत है। एक, कहीं पे भी चले जाओ, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू वर्क। एक, आप जा ही नहीं रहे हो बिकॉज आपकी मर्जी की कंपनी नहीं है, आपकी मर्जी का प्रोफाइल नहीं। But then you need to float your CV, you need to be there, you need to let people know that you exist in the market. आपका एम्बिशन क्या है? सिर्फ खाली स्टे जॉब पे लग जाना, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बस अब मुझे जॉब पे लगना है। इज दैट द केस? एम आई सपोज टू डू दैट ओनली? सिर्फ ये करने के लिए इज सफिशिएंट? ऑब्वियसली नॉट। आई नीड टू हैव एम्बिशन। अगर आप अपने लिए कोई चीज सोचते नहीं हो, ट्रस्ट मी, 5 साल बाद आप जो जॉब कर रहे हो उसमें भी बहुत दुखी फील करोगे। लाइफ यही चल रही है, विल बी दैट काइंड। यू नीड टू हैव समथिंग जो आपको खुश करे, जो आपको वहां इंटरव्यू टेबल पर एक मोटिवेशन दे। एक छोटी सी स्टोरी आपको अगर मैं बताऊं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, इफ आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, अ स्टूडेंट जस्ट पास्ड आउट इन 2018, 2 साल हुए हैं उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए। ही हैज जॉइंड एन एमएनसी जो कि सिर्फ ऑफ रोल पे थी, यानी कि ही वाज देयर एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, बट ऑल ही हैड वाज कि मुझे किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना है, चाहे वो कुछ भी हो। एंड आज 2 साल बाद वो स्टूडेंट मुझे फोन करके ये कह रहा है कि उसको कंपनी ने परमानेंट जॉब पे ले लिया है, और नॉट ओनली दैट, he is going to get a package of 40,000. Imagine at the age of 22. अगर 22 की एज को 40,000 अर्न करने की काबिलियत रखता है, that's where you need to be clear. आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। अगर आपको सिर्फ पैसे भी कमाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, घर की जरूरत है, पैसे कमाने, पैसे कमाओ, बट वो पैसे किस तरीके से कमाने हैं, आपको इस प्रोसेस में अपने आप को कहीं पर भी खोना नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसकी भी जरूरत है कि वो भी घर चलाता है, बट ही वॉज क्लियर कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाना है। दैट्स वेयर यू नीड टू हैव एम्बिशन। यू नीड टू नो दैट वेयर आर यू हेडिंग एक्चुअली। You need to work on your ambition. You need to choose your career well. अब आता है सेल्फ डेवलपमेंट की बारी। आप कहोगे मैम उसी के लिए तो we have joined this session. Absolutely, you have joined this session for the sake of self development. Self development क्या है? Confidence. Self development क्या है? English speaking. Self development क्या है? स्टेज फियर दूर करना, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठ के बोलना। अंडरस्टूड? बट सेल्फ डेवलपमेंट इन सबसे पहले ये चीज है कि आप अपने दिमाग को कितना क्लियर रखते हो, आप अपनी चॉइसेस को कितना क्लियर रखते हो, आप करना क्या चाहते हो। आई हैव माय स्टूडेंट्स जो कनाडा जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वही उनके दोस्त हैं जो यहाँ रहकर बिजनेस भी कर रहे हैं। हर एक की अपनी चॉइस है। ये सेल्फ डेवलपमेंट है, ये सबसे बड़ा सेल्फ डेवलपमेंट है, जहां आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको अब आप कहोगे कि मैम वही तो कंफ्यूजन है, आप सोचोगे कि अरे वही तो प्रॉब्लम है कि कुछ समझ में नहीं आ। ये जो समझ में नहीं आने वाली बात है, ये कल भी वही रहेगी, 2 साल बाद भी वही रहेगी। जब तक आप अपने मन से डिसीजन नहीं लोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप जा क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। सोसाइटी डेवलपमेंट, कुछ ऐसी चीज जिससे आप सिर्फ अपनी नहीं, माशरे की भी मदद करो, लोगों की भी मदद करो। थिंक ऑफ द सोसाइटी, हाउ आर दे डीलिंग विथ यू, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोसाइटी। किस हद तक आप कर भी रहे हो, किस हद तक आप नहीं भी कर रहे हो। अब आप कहोगे मैम अकाउंट्स के जॉब में मैं सोसाइटी की क्या हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स नॉट द केस। सोसाइटी की हेल्प हर तरीके से हो सकती है। आपको पता है, एक छोटी सी चीज बताती हूँ, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई डू। व्हाट्सएप पे स्टेटस हर कोई रखता है, बड़े सारे स्टेटस होते हैं रखने में। आप मूवी का, वीडियो का ये रखते हो, बहुत सारी चीजें रखने के लिए। स्पेशली यंगस्टर्स तो दे आर लाइक, इनका तो डेली रूटीन है कुछ ना कुछ स्टेटस पे जाना चाहिए। वन फाइन डे आई थॉट कि यार ये स्टेटस 24 घंटे चलता है, एंड इट इज लाइक आई सॉ, जब मैं पोस्ट वगैरह डालती थी तो पीपल यूज्ड टू रिप्लाई, तो आई अंडरस्टूड मेरे कॉन्टैक्ट में तो 1000 लोग हैं, कम से कम 1000-1200 लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो ये लोगों को मेरा स्टेटस दिखता होगा।
तो मैं क्यों ना एक सिंपल सा काम करूं, मैं जॉब ओपनिंग्स डालना शुरू कर दूं। आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई एम अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब ओपनिंग्स डालना शुरू कर दूं। हो सकता है ये 1000-1200 लोगों की पहचान में कोई होगा जिसको जॉब की जरूरत है, बट हर कोई बोलता तो नहीं है, हर कोई करता तो नहीं। नाउ आई एम क्लियर व्हाट आई नीड टू डू, तो मैं क्या करती हूँ, बस मैं जॉब पोस्टिंग अपने स्टेटस पे रख देती हूँ, हो गया। कहीं ना कहीं वाया 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 वो पहुंच ही जाता होगा जिसको जिसको जहां जहां पहुंचना है, मुझे पता भी नहीं चलेगा, किसी ना किसी की शायद हेल्प हो जाए। It's like society development is going to come only when you take charge of your own career. ये कब पॉसिबल है? आज अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो मैं क्यों कर पा रही हूँ? Not because I'm an MBA, but because I feel that I have that much thing कि मैं कर सकती हूँ। That much thing as in I have that interest कि हाँ ठीक है, I can give my talent to the society. इसलिए टैलेंट डेवलप करना जरूरी है। अब इतनी देर से मैंने आपसे कहा एम्बिशन एम्बिशन एम्बिशन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस एम्बिशन इज। एक्चुअली में ये एम्बिशन होता क्या है और ये क्यों होता है। वी टॉक अबाउट हार्डवर्क, वी टॉक अबाउट डेडिकेशन, वी टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन, वी टॉक अबाउट फेलियर्स। अब एक सिंपल सी चीज, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा ट्रेंड है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पर आपको मतलब से आप एक सिंपल से जॉब के लिए जा रहे हो, वहां पर भी मतलब यू नो कि अरे बड़ा कंपटीशन है, मैं अकेला कैंडिडेट नहीं हूँ, ऑब्वियसली देयर आर 10-20 पीपल मोर देयर फॉर द इंटरव्यू। उनको देखते ही हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं कि अरे नहीं, इसका तो एमकॉम है, मैं तो सिर्फ एक बीकॉम हूँ, मैंने तो ये नहीं किया, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे साथ तो बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग थे। बट जब आप इंटरव्यू टेबल पे पहुंचते हो, इट इज ओनली यू एंड द इंटरव्यूअर, तब आपका एम्बिशन काम आता है, तब आपका इंग्लिश स्पीकिंग काम नहीं आता, तब आपका एम्बिशन काम आता है। आप कितना फर्मली ये चीज सामने वाले को बता सकते हो कि आपके अंदर जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, वो आप कंपनी के लिए कैसे यूज करने वाले हो, आप कंपनी को किस तरीके से आपका टैलेंट केटर कर सकते हैं, ये आपका एम्बिशन डिसाइड करता है। आप अपने आप को आई हैव एन एक्टिविटी ऑल्सो, आप लोग जो कर सकते हो सेशन के बाद भी खुद से, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ, आप खुद से ये सोचो कि मुझे करना क्या है, अभी क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, ये सारी चीजें, ये सवाल आपको आना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपको ये सवालों के जवाब दुनिया में कोई नहीं देगा, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि आपको करना क्या है। आप जो करते हो ना, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, आप पैसे कमाने वाले हो, आप अपने आप को सोचते हो कि हाँ मैंने जॉब करना शुरू कर दिया, मैं घर की जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ, ये एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन है आप अपने आप को खुश किस चीज में देखते हो, आपके पास अगर कोई टैलेंट है तो उसको आप यूज कैसे करते हो, और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, दैट मैटर्स। क्योंकि जब आप ये चीज पे श्योर रहोगे तभी जाकर आप ये चीज आगे पुटअप कर पाओगे, यानी मेहनत कर पाओगे उसको, भले ही उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए। यू आर क्लियर, आपको वो चीजें करनी है, दैट्स वेयर योर डेडिकेशन कम्स इन। पॉजिटिविटी प्लस डेडिकेशन इज एम्बिशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। आपके अंदर कोई भी चीज, यानी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी करियर, कोई भी चीज करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी पॉजिटिव। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं या मैं करने वाला हूं, ठीक है ना, लेट मी ट्राई, व्हाई डू आई हैव टू मेक इट कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या नहीं नहीं ये मेरे बस का नहीं है, नहीं ये तो फेल ही होने वाला, नथिंग लाइक दैट। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप डेडिकेटेड रहोगे, ये कि नहीं मुझे ये चीज पूरी करनी है, ये दोनों चीजें ही आपको आपका एम्बिशन दिलाएगी। हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, वी फील दैट एम्बिशन इज मनी, मतलब अगर मैं एक अच्छी सैलरी पे पहुंच गई, एक अच्छी जगह पे जॉब करने लगी और ज्यादा पैसे कमाने लगी, मेरा एम्बिशन पूरा हो गया। एम्बिशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, नॉट इक्वल टू मनी। पैसा आप कितना भी कमा लो, डजंट मैटर, बट हाँ रिस्पेक्ट आप कितनी कमाते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एम्बिशन है।
तो आपके पेरेंट्स को शायद ये बोलकर खुशी ना हो कि मेरा बेटा 50,000 कमाता है, बट हाँ, आपके पेरेंट्स को ये बोलकर जरूर खुशी होगी कि मेरा बेटा विप्रो में मैनेजर है, टीसीएस में मैनेजर है, रिलायंस में मैनेजर है, टाटा में काम करता है ना? तो इट्स इक्वल टू रिस्पेक्ट. एम्बिशन इज नॉट इक्वल टू एसेट. गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आज एक 1 BHK में रहते हैं, कल एक 2 BHK और ईएमआई पे ले लिया. दिस इज फॉर व्हाट आई एम अर्निंग, इसीलिए मुझे जॉब करना है. या फिर मैं अपनी जो कंपनी में काम करती हूँ, मुझे पता है कि हाँ, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टे फॉर अनदर 4-5 years, तो लोन लेकर ईएमआई पे और भी प्रॉपर्टी ले लूं. लोगों को पता चलेगा कि मैं कामयाब हूँ. एम्बिशन, कामयाबी एसेट से नहीं आती, ग्रोथ से आती है. तो मैं अगर एक नॉर्मल से फ्रेशर से ज्वाइन करके इफ आई एम रीचिंग टू अ मैनेजर का पोजीशन, दैट इज माय एम्बिशन, दैट इज माय ग्रोथ, दैट इज वेयर आई फील कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, समथिंग सब्सटैंशियल. एम्बिशन इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटिशन. मैं 50,000 कमा रही हूँ, मेरी फ्रेंड 75,000 कमा रही है, अब मुझे कैसे भी करके 80,000 कमाना ही है क्योंकि आई शुड बी मोर देन माई फ्रेंड्स. इट्स नॉट एम्बिशन. उस चक्कर में मैं और दूसरा जॉब करने लगूं, दैट्स नॉट एम्बिशन. एम्बिशन इज इक्वल टू सक्सेस. और कंपटीशन और सक्सेस में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, जो हमें समझ में आता है बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. We really don't want to accept the fact that we need to be successful and not competitive. हम हमेशा लग जाते हैं रेस में, उसका इतना है तो मेरा इतना क्यों नहीं है, मेरा इतना है तो उसका इतना क्यों नहीं है, all sort of things. That's where we talk about ambition. We talk about time management. अब मैं छोटी छोटी चीजों को टच कर रही हूँ ताकि हम इन सारे एलिमेंट्स को अच्छे से समझ सकें, जो कि आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा. जब हम एक इंटरव्यू के टेबल पे बैठे होते हैं, जब हम एक इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं, तब क्लास में किए गए लेक्चर काम नहीं आते, बट दिमाग में चलती हुई ये बातें याद आती हैं कि मैं कितनी पंक्चुअल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये काम आता है, मुझे ये नहीं आता है, मैं कितनी पेशेंट हूँ, मैं कितना गुस्सा करती हूँ. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जब कभी नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो सोचना, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे रहते हो, नर्वस होते हो, छोटा सा सजेशन देती हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे होते हो और आप बहुत नर्वस फील करो, सबसे पहले अपनी सारी स्ट्रेंथ गिनना शुरू कर दीजिए. मुझ में कितनी एफिशिएंसी है, कितना मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ, कितनी मैं पंक्चुअल हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. दैट्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ से आपका एक्चुअल इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब आप एक इंटरव्यू के लिए वेट करते हुए अपनी पॉजिटिविटी गिने और ना कि आपकी कमियां ढूंढे. हमें ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम नर्वस होते हैं, हम इंटरव्यू में होते हैं, तो हम अपनी कमियों पे, हमारी वीकनेसेस पे ध्यान देने लगते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं दूर से ट्रैवल करने वाला हूँ, क्या मैं ट्रैवलिंग कर पाऊंगा. ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी अगर मैं नेगेटिव सोचूं. पर हाँ, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं टाइम पे पहुंचती हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं ये चीज मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स वेयर योर हाफ ऑफ द इंटरव्यू इज डन. नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाओ और आप ऐसे वेट करते बैठे रहो, ऐसे हाथ को ऐसे करते या जमीन पे पैर पटकते या नर्वस होते कि अरे कब होगा इंटरव्यू, कब होगा इंटरव्यू, तो खुद को खुद की स्ट्रेंथ बताना शुरू कीजिए. आई एम गारंटीइंग यू, आपका इंटरव्यू जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा बेटर जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप खुद को खुश करोगे, आप अंदर जाके कॉन्फिडेंटली चीजों का जवाब दोगे. एक इंटरव्यू में जितना आपके फॉर्मल शर्ट्स और ट्राउजर की इंपॉर्टेंस है, उतना ही आपके, उससे कई ज्यादा आपके पॉजिटिव माइंडसेट की इंपॉर्टेंस है. इसलिए जब मुझे एम्बिशियस होना है, मुझे बनना है कि नहीं, आई नीड टू केटर और आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय एम्बिशन वेल, इट्स नेसेसरी कि मैं चीजों को सीखूं, मैं चीजों की ट्रेनिंग लूं. आजकल YouTube है, आप तो कुछ भी कर सकते हो YouTube पे. शायद आप यंगस्टर्स हो, तो यंगस्टर्स तो एनी विच वेज हमसे कहीं ज्यादा YouTube पे ध्यान देते हैं, YouTube पे रेफर करते हैं. तो आप लोगों को तो पता ही होगा, YouTube पे तो हर एक कंटेंट अवेलेबल है. तो सीखे ना, छोटी छोटी चीजें सीखे.
वर्ड नहीं आता है, वर्ड की टाइपिंग किस तरह होती है वो यूट्यूब पे सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। आजकल तो आपके फोन में भी वर्ड अवेलेबल होता है, उसी पे प्रैक्टिस कीजिए कीबोर्ड के जैसे। नहीं तो फिर उसके बाद में एक्सेल सीखो, एडवांस एक्सेल सीखो। हमेशा याद रखना, अगर आपको एम्बिशियस बनना है, आपको आपके करियर पे ध्यान देना है और आप चाहते हो कि इंटरव्यू में लोग आपको दूसरों के ऊपर इंपॉर्टेंस दें, तरजीह दें, तो अपने हाथ में एक स्किल जरूर रखना जो शायद दूसरों के पास हो या ना हो, आपके पास होनी चाहिए। एज सिंपल एज MS एक्सेल आता है, एज सिंपल एज आपको पेंटिंग आती है, एज सिंपल एज आपको लेटर ड्राफ्टिंग आती है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। बट आपको ट्रांसलेशन आता है, कोई लैंग्वेज आती है, जब आपके पास ये सारी, ये कुछ भी है, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, इनमें से कुछ भी या कोई भी स्किल अगर आपके पास होगी, आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आप डेफिनेटली रेस में दूसरों से एक कदम आगे हो। जब आप एक कदम आगे हो तो आपको पता है कि आपके रेस जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए, that you can be successful only if you keep on learning, keep on training yourself, instructing yourself that okay, I am supposed to do this, I'm supposed to learn a new skill। खुद को एक डेडलाइन दीजिए, हर 2-3 महीने पे कुछ नई स्किल सीखिए। सर्टिफिकेट मिलता है तो ठीक, नहीं भी मिलता तो नॉलेज लो, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। ट्राई यूजिंग इट, ट्राई गेटिंग इट टू योरसेल्फ। आप जितना ज्यादा उन चीजों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। अब आते हैं व्हाट इज करियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो यंगस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है। जब मैं पूछती हूँ ना उनको कि आपको क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे बहुत सिंपल सा जवाब आता है, शायद आप लोग भी यही सोचो कि मुझे जॉब करना है। ठीक है, जॉब करना है, बट ये जॉब करने का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जॉब करने का मीनिंग क्या है? जॉब करने का एक्चुअल रीजन क्या है? कोई मुझे ये नहीं बोलता मुझे करियर बनाना है, कोई मुझे ये नहीं बोलता कि ये मेरा एम्बिशन है। आई रेयरली फाइंड यंगस्टर्स टेलिंग मी दिस, यू नो, दे आर क्लियर, या तो मास्टर्स करना है या तो जॉब करना है, बट इसमें करियर कहाँ है? व्हाट इज करियर? व्हाट एक्चुअली मीन बाय करियर? Am I talking about being successful? Am I talking about doing some work? Am I talking about practicing something? I need to know मेरा करियर मतलब मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ, मैं अपने आप को किस तरह लोगों के सामने पुटअप कर रही हूँ, मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती थी कि मैं एक प्रोफेसर दिखूं, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। बच्चे क्लास में आते हैं बट वो लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना मेरी मेहनत थी। आज मैं सेशन लूं तो आप लोगों को तो सिर्फ ज्वाइन करना है, बट आप लोगों को सेशन में रुका के रखना या आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, ये मेरी मेहनत होनी चाहिए, ना कि आपकी। It should not be a case where you are staying back only out of sympathy or out of say think अरे चल अब मैम बोल रहे हैं तो सुन लेते। Not the case. Unless and until I'm not putting in efforts, I'm not going to get anything at the time. I need to know मुझे करना क्या है. I need to know how am I going to go ahead. Every single thing, and that's my career. For career, you need to ask yourself. आपके लिए वो career word का meaning क्या है? मेरे लिए career motivational speaking. मेरे लिए career I would love to train people and I'm doing that. तो suddenly मेरे लिए career मतलब जो चीज मेरे लिए पैशनेट है, मैं जिस चीज के लिए पैशनेट हूँ। किसी और के लिए करियर का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए करियर का मतलब अब्रॉड जाके सेटल होना होगा कि मुझे तो फॉरेन जाना ही है। तो इन सारी चीजों में हर एक के लिए करियर वर्ड का मीनिंग बहुत अलग हो जाता है। तो आप पहले खुद से तो पूछो कि आपके लिए करियर का मीनिंग क्या है, आप क्या समझते हो करियर क्या है? कभी सोचा? जब ये सारी डाउट्स क्लियर रहेंगे, जब ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, तब जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको कोई जरूरत नहीं लगेगी कि कोई आपको मोटिवेट करे या कोई आपसे ये कहे कि अरे इंग्लिश पे काम कर लो, अरे इस आपका ये चीज अच्छी नहीं है या आपकी वो चीज अच्छी नहीं। ट्रस्ट मी, ऑल दैट वुड मैटर इज
आपको पता है आपको करना क्या है। हाउ इज करियर डिफरेंट देन अ जॉब? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपको जॉब करना है कि आपको करियर बनाना है? जॉब करना है, take my number, I'll give you 10 different call centers or other back-end jobs and all small jobs ka opportunity. Go and apply and I guarantee you out of 10 at least one will call you for an interview. You will get a job. जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कहोगे अरे मैम जॉब ही तो नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। आज भी जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं, बट करियर बनाना बड़ी बात है। तो जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये सोचो कि आपको करियर बनाना है, जॉब नहीं। What careers have you considered? What do you need to have a career? मतलब what do you want need to have a career? मुझे अगर रिपोर्टर बनना है तो मैं घर पे बैठ के रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकती। मुझे अगर इंस्पेक्टर बनना है तो मैं घर पे बैठ के सिर्फ गूगल करके तो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकती ना। वो फिजिकल, वो सारी चीजें। I'll come to it. फ्रेशर्स को आज जॉब कहाँ मिलता है ना, we'll come to it. What I'm talking about is job हर एक को मिलता है। I'm still saying this. If you are talking about pandemic, trust me, हम लोग सिर्फ pandemic में नहीं रहने वाले। And things were not like this 2 years ago. Things are not going to be like this 2 years later. And I'm talking on the ground reality. I am not at all talking कि मैं आपसे हवा में कुछ कह रही हूँ या मैं आपसे सिर्फ ऐसे कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, आपको सुनने में कुछ अच्छा लगे, मुझे कहने में कुछ अच्छा लगे। इट्स अ रियलिटी। जॉब मिल जाता है, करियर बनाना इंपॉर्टेंट है। और यही वजह से हम जब ये सोचते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, चलो लग जाते हैं जॉब पे, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर, दिस इज वेयर यू आर इम्पैक्टिंग योर करियर। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? 21 साल की एज में मैं एक 35 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल मैनेजर को देखती हूँ, उसकी सैलरी देखती हूँ, उसकी लाइफस्टाइल देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार काश मेरा भी ऐसा होता, काश मैं भी एक मैनेजर होती, काश मेरी भी इतनी सैलरी होती, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। एज गैप तो देखो, 21, 35, उसने भी अपनी जिंदगी के 14 साल जी दिए हैं, आप भी दो। तब शायद आप वहां खड़े रहोगे और कोई और आपको देखकर ये कहेगा काश मैं भी इतना सक्सेसफुल होता। बट हम वहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं जैसे ही हम 21 साल की एज में 35 के साथ कंपेयर करके हैं, बोलते हैं अरे मैं भी ये कर सकती, बट कहाँ यार, ये 10,000 की नौकरी में क्या होने वाला है। It's up to you. There are so many different examples out there. चाहे आप जिस भी एंगल से लो, it's particularly on you. क्या आपके पास एजुकेशन है? हाँ अगर है तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है कि जब मैं आप मेरे सामने इंटरव्यू के लिए आओ तो मैं आपको प्रेफर करूं बाकी के 10 लोगों को ना? क्या आपके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग या आपके अंदर वो ऐसा कुछ है कि जो मैं कर सकूं या जिसमें मैं आपको प्रेफर करूं दूसरों के कंपैरिजन? You should develop that thing. And trust me, such things are not going to be done merely by reading books or merely by attending webinars. I am telling you the ground reality. You need to work on yourself. आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। और गूगल और यूट्यूब आपके हाथ में होते हुए अगर आप बोलते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, then sadly that's a very difficult thing to discuss about. आपको कोई और आके सिखाए, pick up YouTube, डालो उसमें, इंग्लिश वीक है, हाउ टू सॉल्व इट। आपको कोई टैलेंट, कोई स्किल डेवलप करनी है, हाउ टू डू इट। अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, पुट इट अप ऑन द नेम इन द यूट्यूब। अरे आजकल तो आई हैव सीन यंगस्टर्स, पता है, जो आप लोग तो शायद फिर भी एजुकेटेड होंगे, मैंने तो अनएजुकेटेड लोगों को देखा है, मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा ट्यूटोरियल सिर्फ यूट्यूब पे सुनते हैं और उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस चालू किया है लोगों ने। एक धीरे धीरे लोगों का मोबाइल रिपेयर करते 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 दे हैव स्टार्टेड देयर ओन थिंग। करने पर आओ तो आप सब कर लोगे ना, बट अगर आप पहले ही ये एटीट्यूड रखोगे तो कहाँ से होने वाला है। आप पहले ही ये सोचोगे नहीं देता, कोई आपको ला कर नहीं देगा थाली पे खाना, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। That's where we talk about career. जिस तरह से मैंने एम्बिशन की बात की थी, पॉजिटिविटी प्लस डेडिकेशन इज एम्बिशन, उसी तरीके से आई एम सेइंग एजुकेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज करियर। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया बट मैं उसको कहीं यूज ही नहीं करूँ। कल ही हाल ही फिलहाल में आई वाज टॉकिंग, हम इंडिया में जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, जितने इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ इंजीनियर्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हर इंजीनियर अपने ब्रेन को यूज करना शुरू कर दें
तो हमारे पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी और कितनी सारी चीजें होंगी. Do you really think then we'll have to go out and say rely on other countries? We don't have to. But what has happened? हम अपना फोकस रखते पढ़ना है, पढ़ के जॉब करनी है, सैलरी कमानी है, EMI भरना है, जॉब फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, घर का खर्चा चलाना है. That's all. This is the circle we are revolving around. Are we actually implementing our education? We are not. जिस दिन आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे हो और आप अपनी एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन किसी को बताओगे, उसी दिन कोई भी आपको हायर करे. ये मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो दिस इज नॉट अ वेग थिंग. आई एम टेलिंग the day you are able to showcase the implementation of the education that you have fulfilled, चाहे वो 12th क्यों ना हो. अगर आप 12th साइंस हो, 12th साइंस में सारे केमिकल्स, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स और सारी चीजें होती है. अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहां पर आपसे कोई यही पूछता है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन बता पाते हो, यू डिड नॉट हैव अ डिग्री बट देन यू नीड नॉलेज. तो आप अपने एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, दैट्स वेयर योर करियर विल बी डिफाइंड. Your hard work and everything comes from there only. How do you plan your career? सोचो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है. Merely running in the, मतलब कैसा हो जाता है पता है, मैंने देखा है यंगस्टर्स को. दिस इज द नेसेसिटी. इसलिए मैंने आपसे इस टॉपिक के बारे में बात की है आज. मैंने यंगस्टर्स को देखा, इट्स लाइक अ ओपन ग्राउंड, अंधेरा है और एवरीवन इज रनिंग. मुझे जॉब करना है, मुझे करियर बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मैनेजर बनना है, बस मुझे किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी में एंट्री मिल जाए. नॉट नेसेसरी. आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, वो तो सोचो. आप हो कैसे, आपको कौन सा जॉब सूट करेगा. क्या एक किसी शॉप में बैठ के सेल्समैन का काम करना आपके लिए चाहिए, या फिर एक मेडिकल कंपनी में MR का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करना चाहिए. काम दोनों सेम है. शॉप पे भी आप सामान बेच रहे हो, मेडिकल कंपनी का भी आप दवाइयां ही बेचोगे, बट दोनों काम करने की काबिलियत में फर्क है. क्या आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. मैं उन पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी हूं. अगर आज मैं यहाँ फैकल्टी हूँ, कल मुझे कोई कहेगा अरे दुबई की यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी की जरूरत है, डू आई रियली वांट टू रिलोकेट? क्या मैं चाहती हूँ 2 साल में बाहर जाके काम करूं, फिर मैं वापस यहाँ आऊं और फिर मैं स्क्रैच से शुरू करूं? क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे कहा जाएगा अरे पिछले 2 साल से तो आपने इंडिया में पढ़ाया नहीं. इज इट रियली वर्थ इट? या मैं 2 साल ये देखूं कि नहीं, 2 साल जाती हूँ, दिरहम्स में कमाती हूँ, आई अर्न इन lakhs and then I'll come back. If that is my choice, that is my choice. Nobody is telling me and nobody is asking me about it. What is my goal? How do I see? Think of it sensibly. Don't go for your salary. Don't go for your career when you're talking about just salary part. और यही होता है, more salary amount, you depend on the reputation of the society. किसी को नहीं पसंद ना कि सोसाइटी में आप जाके बोलो अरे मैं एक वेटर का काम करता हूँ. क्यों? काम नहीं है? काम ही है ना वो भी. तो छोटी मोटी कंपनी में नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं. Why so? You decide your career, you make your choices. This is what you do. You decide your career like this. जहाँ सैलरी ज्यादा मिले, जहाँ मेरी सोसाइटी में रेप्यूटेशन हो, जहाँ I am getting easy and fast money. लोगों का, मीडिया का असर है, अरे ये इंडस्ट्री में आज जाना सही है, मीडिया इंडस्ट्री अच्छी है, अरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है. करंट ट्रेंड, आजकल जो करंट ट्रेंड आप लोगों के साथ होता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, चलो यही कर लेते हैं. फैमिली का प्रेशर, जॉब पे लगो, ग्रेजुएशन हो गई, कितने दिन घर पे बैठ के खाओगे, कब तक घर पे रहोगे, कुछ तो कर, तू कमाने लगेगा तो घर के हालात ठीक होंगे. आपका दोस्त जो कर रहा है आप भी सोचो हाँ यार ये कर रहा है, मेरे से भी हो जाएगा, चल मैं भी यही करता हूँ. भाई बहन ने जो किया, भाई डॉक्टर बन रहा है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा. अरे बट आपको डॉक्टर बनना भी है, यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट? क्या डॉक्टर बनने के बाद एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो क्या आपको सक्सेसफुली कर पाओगे बिकॉज यू रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर? क्या हो सकता है आपको इंजीनियर बनना हो? दिस इज हाउ यू डिसाइड, बट हाउ यू शुड बी डिसाइडिंग योर करियर. स्टडी व्हाट यू एंजॉय डूइंग. सबसे पहली चीज ये है, अगर आप एक बीकॉम की डिग्री भी ले रहे हो, बीए की डिग्री भी ले रहे हो, तो जो पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो, उसको समझो, कंसेप्ट्स को समझो. डिग्री को सिर्फ नाम के लिए डिग्री मत लो, ताकि आपके सीवी में जब आप लिखो कि बीकॉम क्लियर हो और इंटरव्यू में जाओ तो वो सामने वाले इंसान को आप बता सको कि आपने डिग्री ली है. फैमिली करियर नीड नॉट बी अ चॉइस ऑफ करियर. जरूरी नहीं है ना,
घर में जो है, घर में फादर डॉक्टर है, बड़ा भाई डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो मैं भी वही करूंगा। क्यों? क्योंकि हम दिन रात उन्हीं को देखते आए हैं और हमारे हिसाब से सक्सेसफुल सिर्फ वही है। नॉट द केस। डू नॉट सेटल योर चॉइस बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स चॉइस। एज आई टोल्ड यू, दोस्त ने ये किया, मैं भी कर लेता हूँ, वही अच्छा है। डू नॉट लिंक करियर विद सैलरी। ड्रीम ऑफ बीइंग इन अ बिग करियर एंड नॉट इन अ बिग कंपनी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं टाटा में जॉब करना चाहती हूँ। टाटा में क्यों? क्या मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद को करूं, आप भी ये चीज सोचना जब इंटरव्यू के लिए जाओगे। छोटी कंपनी बड़ा जॉब या बड़ी कंपनी छोटा जॉब, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एक चूज करो तो हाँ दिस इज द राइट ऑप्शन। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शायद मैं उस किस्म की रहूं जहां पर मैं बड़े छोटी कंपनी में बड़ा जॉब करना प्रेफर करूं। आप उस किस्म के रहोगे जहां पर आपको बड़ी कंपनी में छोटा जॉब चल जाएगा। बड़ी कंपनी का टैग तो लग रहा है, आईडी कार्ड तो फ्लॉन्ट कर सकते हो। मैं रिलायंस में काम करता हूँ, मैं टाटा में काम करता हूँ, लोगों को बता सकते हो। दैट्स वेयर इट मेक्स अ डिफरेंस। करियर ग्रोथ के बारे में पढ़ो, कौन से करियर में आपको जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फ्रेशर भी हो तो हाउ आर यू गोइंग अहेड। एक बैकएंड के लिए जॉब, अब मैं आपको मेलो डाउन करके बोलती हूँ, एक बैकएंड के जॉब के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो हाउ यू रियली वांट टू गो अहेड। थिंक ऑफ इट। आस्क योरसेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, इज दिस करेक्ट, इज दिस रूट एब्सोल्युटली राइट, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं ये नहीं कर रही हूँ। ये आपको सोचना है, आपको पूछना है। आपका करियर प्लान आपको डिसाइड करना है। खुद को सोचो, खुद को समझो, रिसर्च करो, आपके डिसीजंस लो, आपके एक्शन लो। नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बट अगर आप अपने हाथ पे हाथ रख के ये बोलोगे कि कहीं कुछ मिलता नहीं है, या फिर ये होता नहीं है, या वो होता नहीं है, या मैं कितने भी इंटरव्यू जाता हूँ मैं क्लियर ही नहीं हो पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। यू नीड टू थिंक ऑफ इट। फिर मैं चाहे आज लूं, चाहे रोज सेशन लूं, जब तक आप खुद को ठीक करने के लिए या आप अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस। छोटी छोटी एक्टिविटीज करो, छोटे छोटे एलिमेंट्स करो। हाउ डू यू सॉल्व दिस? कमिंग टू द एक्टिविटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, थिंक ऑफ इट। ये जो है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हो, देख सकते हो। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज माई स्ट्रेंथ। ये मोर और लेस आपको पता रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मेरी क्या कमजोरी है, मैं किन चीजों से या कौन सी चीजें मुझे और ज्यादा ग्रो करने में, सक्सेसफुल होने में मदद कर सकती है, और कौन सी चीजें हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। यू नीड टू एनालाइज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे जब आप अकेले कमरे में बैठ के, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको एक्टिविटी दे रही हूँ, अकेले कमरे में बैठ के सोचिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज योर थ्रेट। किन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है, किन चीजों से आपको फायदा हो सकता है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ पार्ट है, कौन सा आपका वीकनेस है। सोचिए इस बारे में, ये सवाल कीजिए खुद को। दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू क्लियर योर इंटरव्यू। A very hidden gem I am talking about. खुद को ये सवाल कीजिए, where do you see yourself today? आज आप अपने आप को कहाँ देखते हो? फ्रेशर, एक यंगस्टर, एक इंडिविजुअल जिसने शायद जॉब छोड़ दिया हो, एक इंडिविजुअल जिसको शायद जॉब ना मिल रही हो, एक पास आउट, वट एवर इट मे बी। आज आप कहाँ हो? 3 साल बाद आप कहाँ रहो? आप अपने आप को कहाँ देखते हो? 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो खुद को? बहुत डिफरेंट है। एंड इवेंचुअली 10 साल बाद, आज अगर आप 21 ईयर हो तो सोचो 31 की एज में आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। एक कंपनी का मालिक भी देख सकते हो खुद को, एक कंपनी का मैनेजर भी देख सकते हो, या खुद का बिजनेस करते हुए भी देख सकते हो। आप पर है ना। खुद को ये सवाल करो। द मोमेंट यू डिसाइड ऑन दीज क्वेश्चंस, यू कम अप विद एन आंसर, यू विल एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके जो वो नर्वसनेस है, आपकी वो चीजें हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरव्यू में जवाब नहीं दे सकते, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। एंड दिस विल हैपन। Instead of focusing on you sitting in an interview table, I thought interview table तक पहुंचने के लिए आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हो, उस पर फोकस करना जरूरी है। So I prefer that you should actually think about it. To cherish the capability, learn to explore your ability. Do we really do it?
We don't. With this, I'll end up my part, and I'll hand over to Ehsan sir. Thank you very much, Jazakallah. I would now read out the questions posted by the attendees. There's a question by Amira Siddiqui. My ambition is not fixed, ma'am. It keeps on changing. What can I do in this situation? Absolutely, it happens. And if I'm not wrong, Mira, you are pretty young. Like you must be a fresher or some college pass out, or maybe somewhere in the age group of 2021. It's absolutely okay to keep on changing your ambition. That's not like आप जब तक का ये नहीं हो जाते हो ना, एक particularly career path पे नहीं आ जाते हो, तब तक आपके ambitions change हो, ठीक है. But then you need to focus and ask yourself, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? That's where I gave you that activity. एक बार शांति से बैठो, अपने बारे में सोचो, आज कहाँ हो, 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो. Forget about that marriage part and all those things कि हाँ I'll be married या whatever it is. सिर्फ ये 4 क्वेश्चन के जवाब आप खुद को दो. By the time you are answering these 4 questions, आपको पता चल जाएगा आपका एम्बिशन कहाँ है. और आप जो करते हो ना, आपका जो एम्बिशन चेंज होता है ना, वो इस वजह से चेंज होता है बिकॉज आप शायद दूसरों को देखकर ना, दूसरों के जो सक्सेस पार्ट और जो पॉजिटिव पार्ट है ना, वो सोचकर आप भी मोटिवेट होते हो कि नहीं मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी वो करना चाहिए, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन. ऑप्शन सिर्फ वही सही है जो आपकी कैपेबिलिटी पे सूट हो. होप आई हैव आंसर्ड इट. Thank you. So there's another question from Yasser Abdul Quddus. Ma'am, I'm studying BCom final year in Tamil Nadu. I have completed Tally, but I have no practical knowledge because institution taught us only the software, but they didn't give any practical training as accountant trainee now. Can I get it? I need practical training, please. Anywhere that I'm okay. That he's asking for any company which can hire trainees. So he can basically, if he's studying right now, he can go for internship, internshala.com. Yes, sir. You can look for small internships that are there right now who are looking out for say youngsters and trainee. That is one thing. दूसरी चीज है you can look for some practical exposure ना. CA वगैरह जो होते हैं ना, उनके पास जैसे आर्टिकलशिप हो गया या उनके पास है ना असिस्टेंट के जॉब के लिए जब होता है ना, तो यू कैन एक्चुअली वर्क देयर. वहां पे आपको बहुत रॉ और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम प्रैक्टिकल थिंग, मतलब ऑनलाइन या ऐसा कुछ, तो यू कैन लुक अप टू इट इन टर्म्स ऑफ दीज यूट्यूब एंड फ्री सॉफ्टवेयर ऑन गूगल. टैली के जो ट्रायल बेसिस वाले या ऐसे सारे सॉफ्टवेयर होंगे, इफ देयर इज समथिंग अवेलेबल, यू कैन लुक अप टू इट सो दैट आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सको. आई होप आई हैव आंसर्ड इट, इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. Thank you very much. There is another question from Mohammad Shehzad. How to overcome from fear while speaking in front of public and how to improve communication skills? Lovely. The simplest thing, Shehzad, you need to do is tell yourself, आप जो बोलने जा रहे हो वो सिर्फ आपको पता है. जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, when you're standing in front of people, be it one person or be it 100 people around you, just like right now, whatever I am speaking, ये सिर्फ मुझे पता था कि मैं आपको क्या बोलने वाली. तो आपके हाथ में ये है ही नहीं कि मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ. Unless I get personal, unless I am talking something which is personal to you. जब मैं आपके बारे में कुछ बोलूंगी तब आप मुझे बोलोगे ना कि आप ये गलत बोल रहे हो. मैं जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करो, सबसे पहले ये चीज याद रखो कि लोगों में एक्सेप्टेंस मत ढूंढो कि कोई तो ऐसे नॉड करेगा, हाँ हाँ यू आर मेकिंग अ वैलिड पॉइंट. जैसे ही आप वो एक्सेप्टेंस ढूंढते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस हाँ पे अटक जाता है. अगर किसी ने हाँ बोलना बंद कर दिया ना, तो आपको सडनली लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं सही से नहीं बोल पा रहा. एंड सेकेंडली, एज आई वाज टेलिंग यू, कि जब भी कोई चीज बोलो, जस्ट बी अश्योर्ड कि आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ आपको पता है, ना कि ऑडियंस को पता है, ना ही किसी और को पता है. तो अगर आप कोई लाइन मिस भी कर देते हो या आपको नर्वसनेस फील होता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको एविडेंट करो. इट्स जस्ट दैट स्टार्ट सेइंग योर ब्रेन, दिस इज व्हाट आई नो. ऑडियंस को ये पता नहीं है, तो मैं ए फॉर एप्पल बोल रही हूँ, ये ऑडियंस को पता है कि ए फॉर एप्पल है. बट अगर मैं ए फॉर अमेरिका बोलने वाली हूँ,
ये मुझे पता है कि मैं ए फॉर अमेरिका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे अमेरिका के बारे में बात करनी है, एप्पल के बारे में नहीं. So that's one thing. Secondly, we talk about your communication skills. As I told you, one thing, do not go for acceptance. Secondly, focus on your communication part in terms of conveying your message. Matlab, rather than only focusing on improvising your English or improvising your, say, the way you are talking to people, rather than that, focus on the part कि आप जो communicate कर रहे हो वो सामने वाले को कितना जल्दी absorb हो रहा है. The moment you do that, जितना relativity आप अपनी communications में पैदा करोगे, आपका skill वैसे खुद ब खुद improvise हो जाएगा. Hope I have answered you. Thank you so much. There's another question by Asad Amjad. Ma'am, should we stick to core field or just explore all the fields of interest? It depends. First thing, Asad, the thing is, what is your core field? If you are indicating core field as the specialization of your course that you have completed, it is absolutely your choice on the first place that you chose that specialization. One thing. Secondly, I too generally believe that you should stick around with your core field till the extent if that core field is your interest and your ambition. I'm still intervening career, ambition, interest, and your core field together. If that's not your ambition, then certainly you should try your interest first. Where you are feeling happy and satisfied, go ahead with that thing. But don't keep on jumping and hopping because that gives out a very different thing. I hope I have answered. Thank you so much. There's another anonymous attendee. What information should be included if I'm asked to introduce myself in a teacher's interview? All right. When we are talking about a teaching a thing, the first thing, it remains same everywhere. This is a very common question. We are talking about, tell me something about yourself. The moment someone is asking you to introduce yourself, stick around to what is there in your CV. When you are answering this question, we should firstly go in the flow. आपके CV में जिस तरह से आपने content लिखा है, जैसे कि आप say for example you stay in Thane and then you have written about your career objective, then you have written about your academics, then your interest area, every single thing. When someone is asking you, go ahead in the same fashion, same pattern, so that सामने वाला जब आपका CV देख रहा है तो वो relate करेगा कि जो आप बोल रहे हो वो CV में है. One thing. Secondly, don't specify much about your family. जरूरी नहीं है ये बताना unless it is asked for कि आपके फैमिली में कौन कौन क्या करता है. It's absolutely not necessary. आप सिर्फ और सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं. But then slide out your interest area कि this is what I want to do ahead. I hope that I have answered. Thank you so much, Professor Bushra. There are a few more questions, but since we are running out of time, I would now end the session. But I would like to give a vote of thanks to you. Thank you very much for this wonderful session, which is not only for the freshers, but I would also state that many experienced candidates, if they go through this session, they would also like to do the analysis, their SWOT analysis, wherein, what are their strengths, what are their weaknesses, and they can also improve themselves. Apart from that, for freshers also, you have a very good session for wherein they have to follow their passion. It's not only, to go only with what they have studied. So what they are interested, they can follow their passion and then they can grow their career into that passion. Jazakallah, ma'am, for your tips and your suggestions. I believe all the participants would have got all the details about how to start their career, and inshallah we look forward to similar sessions, ma'am, in future. Inshallah. And for the participants, those who have written in the chat section that they are searching for jobs and they are freshers, so they can visit our website, which is www.empowerjobs.com, AMPOWERJOBS.com. We are also on Telegram, so you can search on Telegram by writing Empower Jobs. So you'll get our group. You can join that group, and we keep on posting our whatever jobs we come across, which are authentic and verified by AMP team. Best of luck to everyone. I would now end the session.